Hello students, today we'll discuss worksheet 38 and chapter 9 force and laws of motion. Today we'll talk about the force. Now first of all, as we have observed that when we push any object or when we pull any object, it starts moving. Suppose we push anything in this direction, so it starts moving towards B direction, or if we pull anything towards ourselves, again it is moving. So that means we have to apply some force for an object to be moved. So force is to be applied, and it is necessary to apply force to make anything move, to stop, to change its direction, to change its shape of an object. So that means to make anything move, stop, or to change the direction or to change the shape of the object, force is to be applied. Now examples we can take as the rubber band. As we stretch rubber band, so its shape changes. और to knead a dough, that means अगर आपके पास क्ले है, उसका हम आटा गूंद रहे हैं, उसकी शेप हम चेंज कर रहे हैं. और है ना, जो गेहूँ है उसको अगर आप उसका डो बना रहे हो तो भी हम उसकी शेप को चेंज कर रहे हैं. जैसे हमने रोटी बनाई तो अगेन द शेप इज चेंज. और टू पुश अ ट्रॉली, और व्हेन अ ब्रेक इज अप्लाइड टू अ मूविंग कार. But many times what happens when we apply force on any object, it does not move. That means what is happening? So if we can also take an example as we are seeing here. To this box, two persons are applying force, but this force is applied in two opposite direction. That means this person is applying force in this direction and the second person is applying force in this direction. So there are two forces which has been applied on this box, and these two forces are in opposite direction, but these two forces are equal. So if these two forces are equal and the direction is opposite, the object will not move. We can also take an example of tug of war. So if, as we are seeing in the picture, three men on one side and the three men on other side. So if they apply same force, but these forces are in opposite direction, so the rope will not move. And if suppose two persons, they push a heavy table, suppose as these two persons are on other sides, but if we take these two persons on one side, or if suppose one person is applying more force as compared to the other one, so this trolley will move in the direction of the direction in which the force is more. Or in a tug of war also, if we see that if the persons who apply more force, that means the other three persons will move towards them. So when these two forces, they are equal in magnitude and are applied on the object in opposite directions, then the resultant force is zero, and in such case we say that the force is balanced, as we are seeing in these two cases. But if the applied force by both the persons, or if the force applied is unbalanced, as I have just told you that suppose one person applies more force than the other, so in that case the object will move in the direction where the more force is applied. So in such forces are known as unbalanced force. Now as we are seeing that the force never acts alone, rather it exists in pairs, and the pair of forces are always in opposite direction. The object will move in the direction in which the force is greater. So when there is a balanced force, the object will not move, and in case of unbalanced force, there will always be a motion.
Now there is one more force which is known as the frictional force, which always acts in the opposite direction of motion. And if we move an object, the applied force must be unbalanced. Then it's frictional force. So if it is a balanced force, means the object will not move, but in case of unbalanced force, there will be a frictional force which is unbalanced. Now to accelerate the motion of an object, an unbalanced force is required. So if the force is unbalanced, then only the object or the motion of the object can change. And the last point is the unbalanced force acting on an object brings it in motion. Means an object will move only when there is unbalanced force. Now let us see the question answers. First, what effect can be produced by a force? Give example. So as we are seeing that in case of the effect produced by a force, means when we are applying force, any object can move, it can stop, it can change its direction, it can change its shape also. So examples we can give as stretching of rubber band, knead a door to push a trolley, stopping a moving car by applying brakes. So these are the examples where we are seeing the effect that can be produced due to force. Now what is the direction of frictional force? As we have just seen, frictional force always acts opposite direction of motion. Third, is it really necessary to apply force to make a body move? Yes, we always have to apply force to make a body move, and the body will only move when there will be unbalanced force. In case of balanced force, there will be no motion. Fourth question, a ball rolled down on a floor and one on a carpet at the same time. Which ball will come to rest? Give reason. Means we are having a floor and a carpet. A ball is rolled down on a floor and carpet. As we know that the floor is more slippery. So as the floor is more slippery, what will happen? There is less friction. Friction will be less, and in case of carpet, more friction will be more. So that means the ball on the carpet will come to rest first as the friction is more. Now last question, as we see कि in a given picture, if we see the picture, there are two arrows A and B with reference to force. Now this point A is showing this direction, means a boy and a girl, they are applying force in the direction of the arrow. That means push is there, so force is applied. And B, the direction of B is on opposite direction, means B is the frictional force which the floor is applying on this box. Now once again we can see the worksheet in Hindi also. आज हम बात करेंगे बल तथा गति के नियम में। आज हम बल की बात करेंगे कि जैसा कि आपने देखा होगा कि हम किसी भी खिलौने को या किसी भी वस्तु को जब अपनी तरफ खींचते हैं या धक्का देते हैं किसी भी वस्तु को, तो वह चलने लगती है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि किसी भी वस्तु के चलने के लिए बल का लगाना आवश्यक है। और जब हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं तो क्या होता है कि वस्तु या तो उसकी दिशा बदलती है या उसका आकार बदल जाता है ना। जैसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि रबर बैंड को खींचना। कई बार हम खेल में ये एक्टिविटी भी करते हैं कि रबर बैंड को हम खींचते हैं तो उसकी शेप बदल जाती है। ट्रॉली का धकेलना, या अगर हम कार में जा रहे हैं तो कार को ब्रेक लगाना, या आप साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल में जब आप ब्रेक लगा रहे हो तो साइकिल क्या है, चल रही है। तो चलते चलते जैसे ही आप उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, मीन्स आपने फोर्स लगाया, तो वो जो है साइकिल रुक जाती है। आटे गूंदने में भी क्या है, हम बल लगा रहे हैं तो उसकी शेप
बदल रही है। आटा गूंदना, फिर उससे रोटी बनाना, तो यहाँ पर बल लगने से वस्तु की आकृति में परिवर्तन आ रहा है। और जब भी हम बल लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि उसकी हमेशा ज़रूरी नहीं है कि बल लगाने पर उसमें गति हो। अब उदाहरण के लिए जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बॉक्स को दो व्यक्ति धक्का दे रहे हैं, लेकिन दोनों की दिशा विपरीत है। एक व्यक्ति इस दिशा के अंदर बल लगा रहा है और दूसरा व्यक्ति इस दिशा के अंदर बल लगा रहा है। अब जो दोनों व्यक्ति बल लगा रहे हैं तो दोनों के बल का परिमाण अगर समान है तो जो वस्तु है या जो ट्रॉली है वो अपने स्थान से नहीं बदलेगी, उसका स्थान वही रहेगा। और जैसे कि आप ये जो रस्सी वाला हम उदाहरण देख रहे हैं कि हम ये भी कई बार खेल खेलते हैं कि आधी आधी हम टीम बांट लेते हैं और हम रस्सी को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर दोनों तरफ से बल बराबर लग रहा होता है तो रस्सी के बीच में जो हम नॉट जो उसका सेंटर पॉइंट रखते हैं वो वहीं रहता है, लेकिन जो टीम ज़्यादा बल लगाती है तो वो रस्सी को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हैं। अब इसमें भी यही दर्शाया गया है कि अगर एक व्यक्ति बल ज़्यादा लगा रहा है दूसरे के कंपैरिजन में, तो जो ट्रॉली है वो एक दिशा में मूव करने लगती है। तो अब हम देख रहे हैं कि जब बल आप यहाँ पर इस केस में हमने देखा था कि दोनों का बल कैसा था, बराबर था। अब जब दोनों का बल बराबर हो गया तो आपस में क्या हुआ, कुल बल शून्य हो गया। और ऐसे बल को हम क्या कहते हैं, संतुलित बल, क्योंकि जो वस्तु है वो अपनी जगह से नहीं हिली। तो जब संतुलित बल होगा तो कोई भी वस्तु जो है वो अपने स्थान में परिवर्तन नहीं लाएगी या उसके अंदर गति नहीं आएगी। और अगर मान लो एक दिशा के अंदर अगर बल ज़्यादा लग रहा है तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा, और ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं कि बल कैसा है, असंतुलित बल है, और वस्तु ज़्यादा बल की दिशा में हिलने लगती है। जिस तरफ ज़्यादा बल लग रहा है वस्तु उस दिशा में गति करने लगती है। तो असंतुलित बल जब होता है तभी वस्तु के अंदर गति आती है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोई भी बल जो है वह अकेला नहीं होता, बल हमेशा जोड़े में होता है। और दो बल लगते हैं, दोनों बल आपस में विपरीत दिशा में होते हैं, और जब भी दोनों बल एक दूसरे से ज़्यादा हो तो वस्तु में गति आती है। किसी भी वस्तु में अगर बल संतुलित है तो उसमें बल अगर संतुलित है और विपरीत दिशा है तो उसके अंदर गति नहीं आती। अब घर्षण बल जैसे हम देख रहे हैं, घर्षण बल क्या है, हमेशा विपरीत दिशा में लगता है। किसके विपरीत दिशा में, गति के विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है। और जब भी वस्तु के ऊपर बल लगाए जाने वाला बल उसके घर्षण बल से अधिक हो तो उसे असंतुलित नहीं करेगा, तब तक वस्तु नहीं हिलेगी। यानी कि अगर जो बल, कोई भी वस्तु अगर गति में है और उसके ऊपर अगर घर्षण बल लग रहा है, घर्षण बल अगर ज़्यादा है तो वस्तु रुकेगी, अगर घर्षण बल कम है तो वस्तु नहीं, घर्षण बल अगर कम है तो वस्तु अपने स्थान को परिवर्तन करेगी या परिवर्तित होगी। और लास्ट पॉइंट अगर हम देखें, किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। यानी कि जब बल संतुलित है तो उसमें गति परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन जब बल असंतुलित है तभी गति परिवर्तन होगा। अब एक बार प्रश्नों को हम देख लेते हैं। पहला है, बल क्या क्या कार्य कर सकता है, उदाहरण सहित लिखिए। अभी हमने देखा कि बल क्या क्या कार्य कर सकता है, वस्तु को चलाने में, किसी भी वस्तु को रोकने में, गति की दिशा को परिवर्तन करने में, या आकार को बदलने के लिए भी बल की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए जैसे अभी हमने देखा रबर बैंड का खींचना हो गया, ट्रॉली का धकेलना, कार में ब्रेक लगाना, या जैसे हमने साइकिल का उदाहरण लिया, ये सारे उदाहरण हमारे पहले प्रश्न में आते हैं। दूसरा प्रश्न है, घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा, घर्षण बल विपरीत, गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। थर्ड, क्या किसी वस्तु को गति देने के लिए बल लगाना ज़रूरी है। हाँ, किसी भी वस्तु को अगर हमें गति करनी है तो उस पर बल लगाना आवश्यक है, लेकिन वो बल कैसा होना चाहिए, असंतुलित बल होना चाहिए, तभी वस्तु गति करेगी। अगर संतुलित बल होगा, क्योंकि दो बल लग रहे हैं हमेशा और दोनों बल विपरीत दिशा में हैं,
लेकिन असंतुलित होगा तो वस्तु गति करेगी। फोर्थ क्वेश्चन अगर हम देखें, फर्श पर ढुलकाई गई एक गेंद कारपेट के ऊपर है और एक गेंद फर्श के ऊपर है, तो कौन सी गेंद जल्दी रुकेगी? अब जैसे हमें पता है कि कारपेट का जो सरफेस है, गलीचे का जो सरफेस है, वो कैसा होता है? रफ सरफेस होता है, और रफ होने के कारण वो घर्षण ज़्यादा पैदा करता है। तो इसलिए फर्श की जगह कारपेट के ऊपर जो गेंद है वो जल्दी रुकेगी, क्योंकि वहाँ पर घर्षण अधिक है, और इसी कारण से वस्तु को वो जल्दी रोक देगी। पांचवा प्रश्न अगर हम देखें तो इस चित्र के अंदर दो निशान दिए गए हैं, ए और बी। तो ये क्या दर्शा रहा है? ए इस दिशा में दिखा रहा है, इसका मतलब वो दो जो बच्चे हमें नजर आ रहे हैं वो एक ही दिशा में अगर बल लगा रहे हैं तो इसको हम कह रहे हैं कि यहाँ बल लग रहा है। और बी जो है वो विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में यानी कि फर्श उस जो बॉक्स है उसके ऊपर क्या कर रहा है? घर्षण बल लगा रहा है। तो ए तो बल है और बी जो है वो उस वस्तु के ऊपर घर्षण बल लग रहा है, यानी कि दो बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं। तो होप स्टूडेंट्स, वर्कशीट बहुत सिंपल है, आसान है। इसको हम अपने आसपास जो जितने भी उदाहरण हैं उन उदाहरण को देखकर अब हमारे मन में जो है इस प्रश्न के या इस वर्कशीट का जो मैटर है वो हमारे मन में रहना चाहिए कि जब हम अपने आसपास की वस्तु देखें कि कहाँ पर बल लग रहा है, कहाँ पर घर्षण हो रहा है और कहाँ पर संतुलित बल है, कहाँ असंतुलित बल है, तो इसको हम अपने आसपास के वातावरण में इस टॉपिक को खोजने का प्रयास करें। और फिर हम नेक्स्ट जो वर्कशीट आएगी नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको और ज़्यादा आगे डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।